Breathing plays an important role while doing yoga. To know the importance of inhaling and exhaling in our body while doing various asanas, Acharya Shri Vijayavallabh School, Pune has come up with a webinar on Yoga Heals the Soul by our speaker Dr. Sunanda Rathi to help each one of us to lead to internal and external purity. Our chairman, Shri Subhashji Parmar, has inspired and guided us to create calmness in mind and body through deep breathing to head a personalized approach for your active lifestyle. Let's begin with our today's energetic webinar. Good morning to one and all. I, Evelina John, on behalf of Acharya Shri Vijayavallabh School, welcome you all for today's Facebook Live Sunday hour on the topic Yoga Heals the Soul. As we all know, yoga is the best way to health and fitness. It is a breath of fresh air which gives peace of mind and let go stress and anxiety. Yoga improves strength, balance and flexibility. योगा इंसान को स्वस्थ और निराकार बनाता है। योगा से आप अपने जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। Yes, it is rightly said. Yoga is a light which once lit will never dim. The better your practice, the brighter the flame. This webinar is especially organized for our students to know more about yoga. So live life longer with yoga. With this inspiring quote, let's move to our session. I request our principal, Mrs. Snehal Khadaukar ma'am, to brief us about our school. Over to you, ma'am. Good morning to one and all. It's a great pleasure to welcome you all to Vijayavallabh Sunday Hour. From the bottom of my heart, I thank our today's renowned speaker, Dr. Sunanda Rathi, for accepting our request and ready to preside our today's webinar on an interesting topic, Yoga Heals the Soul. It is rightly said, yoga has the power to reconstruct a person completely. Yoga can help you feel great and function better in your daily life. Yoga takes you in the present moment, the only place where the life exists. The art of practicing yoga helps in controlling an individual's mind, body, and soul. It brings physical and mental discipline to achieve a peaceful body and mind. It helps you to manage stress and anxiety and keeps you relaxing. Very important principles of yoga includes proper exercise, proper breathing, proper relaxation, proper diet, positive thinking, and meditation. Keeping all these things in the mind, our students at Acharya Shri Vijayavallabh School practice yoga, meditation every day. We also celebrate Yoga Day every year. Various workshops are arranged for our students, parents, and teachers so they can learn the benefits and practice yoga. With these thoughts, I wholeheartedly thank our chairman, Sri Subhashji Parmar, for the strong support and guidance given to us to arrange such an energetic and motivating webinar. So let's move further and get enlightened on today's interesting topic, Yoga Heals the Soul. Thank you. Over to you, Evelina. Thank you, ma'am, for your encouraging views. Now, I would like to introduce to you our guest of honor for today, a very eminent personality, Dr. Sunanda Rathi. Ma'am is a doctorate in communication and business management and founder director of Chiranjeev Foundation. She has done PhD, LLB, BCom and MCom from Pune University. Ma'am is a yoga instructor and has conducted yoga instructor course of 300 hours for yoga teachers training program. She has conducted short-term workshops, seminars for holistic management of health like yoga for diabetes,
management, yoga for obesity management, corporate yoga, yoga for improving immunity, pranayam, meditation, and advanced techniques. Ma'am has 5 years of teaching experience as HOD at SNDT College, Pune from 1980 to 1985. She has 12 years professional experience as financial consultant and 2 years of experience as consultant in business administration on Clarion Shipping, Dubai-based company. Ma'am is a trustee and former president of Maheshwari Vidya Pracharak Mandal, Pune, appointed as Senior Research Fellow for the Project of Diabetes, Ministry of Ayush for Scientific Advisory Research Committee of SPPU and Subject Matter Expert in Pune University for designing online credit course. Ma'am has been honored with many awards for her unique and marvelous work. Ma'am, we are indeed very fortunate to have you with us this morning. Thank you, ma'am. Now let's watch a video on the sessions taken by our speaker. Thank you, ma'am, for the wonderful video. Really, yoga is so much more than just physical exercise. Even a simple pose is a stress reliever. I think we all have understood this after watching the video. Close it. Oof. You can't do this. You cannot hold your breath for longer time. So now, breathing is very, very important. We cannot live without breathing. Whether it's a holiday, working day, whether we are sleeping, or whatever we are doing activities, we have to breathe. You may be thinking, children, what is there to learn? Because the moment child is born, he starts breathing. He starts crying. And breathing is a natural process. That natural process in our scientific yogic language is known as involuntary breathing. What is involuntary? Which is not in our control. It happens automatically. But I'm going to tell you something related to voluntary breathing, how we can breathe in and breathe out, and how breathing helps us for everything. What are the benefits? We will see at the end. You might be having many questions. You can ask me at the end. First, let us learn breathing. And I told you, you cannot stop for a minute also without breath, right? You got it? Are you with me? You have to be with me for this 35 minutes? No way. You have to be with breathing throughout day, throughout week, throughout month, throughout year, in continuity. Only I am guiding you how to breathe every day in day-to-day life. Sometimes it happens, you are sitting in a class, teacher is teaching you, a class is going on, and suddenly teacher asks you a question. You stand up and you forget. You do not know answer. What happens? Teacher get angry and you feel very embarrassed. What to do? Everybody is looking at you. No answer. This breathing also helps in that situation. So, my dear student, breathing helps us in every situation. Breathing helps us to improve your memory. Breathing helps us to develop our intellect. Breathing gives you confidence. Breathing stop your aggression. Breathing stop when you go into the depression. So let's start learning breathing. Let's have a small PPT presentation. May I have first slide of PPT?
By the time technical team plays PPT, let me welcome our chairman, Subhashji Parmar, who is here to see how this breathing is going to help you. So I welcome chairman and organizer. Next slide. We will start our presentation with prayer. So please sit straight upright, close your eyes, mind, body, soul together. Do not manipulate your breath. And you can see on the screen this particular prayer. You can open your eyes if you do not know. If you know, you can close your eyes, adopt Namaskar Mudra. And I'm chanting prayer. If you know, you chant with me. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. What is the meaning of this prayer? Om, may we all are be protected, may we all be nourished, may we work together with great energy, may our intellect be sharpened, may our study be effective, let there be no animosity amongst us. Om, peace, peace, peace. So with this Om peace, we will be going to learn this breathing technique. Next slide, please. I told you this. Today is a holiday. You might have other plans. Even I have its birthday bash of my son. But we all are here for this session. Be with me 30 to 35 minutes, not because it's my session, but because this session is going to teach you to remain in bliss, in present moment throughout your life. Next slide, please. Oof, what is your problem? You have problems and you are looking for solution. I'm giving you simple technique. Are you ready? Say yes. Say yes, you all are ready. You can write in chat box if you are ready. If you have a question, you can write in chat box. Our technical team is just looking at your questions also. Next slide, please. Moving away from your wins should be quicker than moving away from your losses, defeats, and failure. Don't sulk in your defeat, but introspect the things that went wrong. We all are aware that whenever we are successful, we dwell into the success for a longer time. And when we are failure, we go into the depression. So how to come out of that depression and not dwell only in success? Because dwelling in success, we have to be very eager for next success. But when we are losing, we are going in depression and we have to come out of it. And how breathing helps for this activity, because failure and defeat and losing is a part of our life. Sometimes maybe in marks, sometimes in sports, sometimes in any situation. So we have to introspect ourselves. Next slide. Next slide, please. So breathing. Today we are talking about deep breathing. How to do deep breathing and how to exhale out of it. So just look at this, adopt any mudra, come in sitting position and take a deep breath in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Next slide. Keep your one hand on abdomen, other hand on your chest, and just observe what is happening to you when you do deep breathing. Okay, next slide, please. Take a deep breath in. Next slide. Take a deep breath in. Next slide. Breathe out.
And now you will see that your abdomen bulges when you take deep breath. If you are taking breath in and your abdomen is going inside, you are doing wrong breathing. So observe what is happening with your abdominal movement when you are breathing. Breathe in, abdomen bulges out. Breathe out, abdomen suck in. So this is a right kind of breathing. So whenever we take a deep breath, my dear children, your abdomen should come out. And whenever you are breathing out, your abdomen should go in. So remember, this is very, very important. Next slide. So you have seen that abdominal breathing. Next slide, please. Technical team, where are you? Taking breathing. You are also doing breathing, taking breath in and breathe out, because the slide is stuck. No way. Don't worry. There is some technical issue, I think, with the slide presentation. So we have understood the importance of breathing technique. Oh, let me tell you something scientifically before we go for more practices. You know, it is helping for our respiratory system. Deep breathing helps oxygenate your muscles. You want strong muscles, right? Are you with me, students? You want strong muscles? So Yes. Deep breathing helps for oxygenate your muscles. Make your heart work little harder. Improve your blood circulation. Lower your blood pressure. Enhance your mental outlook. Improve the quality of your airways and even strengthen your bones. So many things with small activity of deep breathing. This is what with respiratory system. You must have understood in science what is the respiratory system, where we take breathe in and breathe out. Next slide. We are just understanding the importance so we can help. See, this is a gas exchange. Whenever you take deep breath, abdominal breathing encourages full oxygen exchange. The beneficial trade of incoming oxygen and outgoing carbon dioxide is balanced. तो जैसे ही हम डीप ब्रीथ करते हैं ना, प्राणवायु अंदर जाता है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वायु बाहर आता है. इसे हम गैस एक्सचेंज कहते हैं. तो डीप ब्रीथ करने से बहुत अच्छा ऑक्सीजन हमें मिलता है, तो इसको हम गैस एक्सचेंज कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हमारी इम्यून सिस्टम, आई डोंट वांट टू स्पीक अ लॉट अबाउट इम्यून सिस्टम, ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि कोरोना ने सबको बता दिया है कि हमारी इम्यून सिस्टम कितनी इंपॉर्टेंट होती है. फ्रेश एयर हमारे इम्यून सिस्टम को कितना स्ट्रेंथन करती है, और ये फ्रेश एयर जब हमें मिलती है तो ऑक्सीजन हमारे वाइट ब्लड सेल्स और फंक्शन को फाइटिंग के लिए, किलिंग के लिए हेल्प करता है. तो देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्प हो गया, प्राणवायु कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज को हेल्प, और इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया. नेक्स्ट स्लाइड. डाइजेस्टिव सिस्टम. आजकल हम देखते हैं खाने पीने का तरीका ही बदल गया, फास्ट फूड आ गया, खाने का समय नहीं बचा है, तो प्रॉब्लम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में. कितना भी कंट्रोल पेरेंट्स टीचर्स करना चाहे, हो नहीं सकता. इसलिए हम यदि डीप ब्रीदिंग करें, कब करना है ये मैं बताऊंगी आपको कि डीप ब्रीदिंग कैसे करना है, कब करना है, मगर डीप ब्रीदिंग से हमारा डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है और फ्रेश एयर का फ्लो जो है वो ऑक्सीजन डाइजेशन को हेल्प करता है. नेक्स्ट स्लाइड. माइंड शार्पन. सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेलेक्ट एंड माइंड. आजकल देखते हैं मेमोरी का प्रॉब्लम है, कुछ याद नहीं रहता है. इंटेलेक्ट शार्पन करने के लिए हम काफी सेमिनार और सेशंस लेते हैं, मगर यदि आप ये ब्रीदिंग टेक्निक जो मैं आपको सिखाऊंगी सीखोगे तो दिस विल शार्पन योर माइंड ऑल्सो. जो भी पेरेंट्स हमें जुड़े हैं वो यदि बच्चों के से ये डीप ब्रीदिंग करा के लेंगे तो उनका माइंड भी शार्पन होगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. डीप ब्रीदिंग मेक्स यू हैप्पी. एक ऐसा हार्मोन हमारे ब्रेन में से आता है डीप ब्रीदिंग से, जिससे हमारा हैप्पीनेस बढ़ जाता है और हमारा ड्राउजीनेस, हमारा डिप्रेशन, हमारा एग्रेशन कम हो जाता है.
ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि सेरोटोनिन हार्मोन जो है ना वो बाहर आता है और हम लोग इससे खुश महसूस करते हैं। आप देखोगे जब हम ये एक्सरसाइज करोगे, आपकी पहले की और बाद में की छवि को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलो ना, कितना सुन लिया, डाइजेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, माइंड के बारे में, ब्रेन के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, इतना सब कुछ मिल रहा है, वो भी एक ही सेशन में, और वो भी सिर्फ ब्रीदिंग से। चलो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आर यू विथ मी? रेडी टू प्रैक्टिस? कम ऑन, बी इन कंफर्टेबल पोजिशन एंड वी विल स्टार्ट। यू ऑल हैव टू डू दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ओके, सो स्लाइड भी आपको दिखाएंगे, साथ साथ में हम करेंगे। पहली स्लाइड दिखा दीजिए इसके बाद की, जो है इन एंड आउट ब्रीदिंग, हैंड इन आउट ब्रीदिंग है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। हैंड इन आउट ब्रीदिंग, हैंड इन आउट ब्रीदिंग। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट, take your hand in front of you. Take a deep breath. ब्रीदिंग करते हुए हाथ को साइड में ले जाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए सामने लेके आओगे। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हम ब्रीद इन करने के बाद होल्ड करेंगे। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। और एक बार करेंगे। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। In and out breathing helps for your respiration. Full breathing, lungs are getting प्राणवायु, ऑक्सीजन मिलता है, और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इससे डेवलप होता है। बहुत ही सिंपल है, सभी पेरेंट्स भी हमारे साथ कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही अच्छी होती है। इसके बाद का जो ब्रीदिंग है वो है हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग। इंटरलॉक कीजिए अपने हाथों को, सामने रखिए। इसके बाद ब्रीद इन करते हुए हाथों को हम लोग सामने लेके जाएंगे। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out। इसमें वेरिएशन है। अब हम ब्रीद इन करते हुए हमारे हाथों को 180 डिग्री तक लेके जाएंगे, आपके फोरहेड के सामने। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, hold, breathe out। अब हम थर्ड वेरिएशन करेंगे हैंड स्ट्रेच ब्रीथिंग का। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out, breathe in, hold, breathe out। Last time, breathe in, breathe out। इसके बाद होता है खड़े रह के एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग। आपको खड़े रहना है तो खड़े रहिए, नहीं तो आप बैठ के खड़े रह जाए। हम लोग खड़े रहते हैं, और अब आप
हाथों को ऊपर लेके जाएंगे ब्रीद इन करते हुए और एंकल को स्ट्रेच करोगे। आपके एंकल को स्ट्रेच कीजिए, होल्ड करेंगे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लास्ट टाइम, ब्रीद इन, हाथ को सीधा रखिए, अपने बाइसेप अपने ईयर को टच कीजिए, नमस्कार मुद्रा, बैलेंस को अपने आप करेक्ट, वेरी करेक्ट, ब्रीद आउट। अब हम बैठेंगे और हमें नेक का ब्रीदिंग करना है, हमारी ये जो ग्रीवा है, क्योंकि जब भी हम क्लास में बैठते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं, कुछ काम करते हैं, तो अभी हम देखते हैं हमारे नेक के ऊपर बहुत स्ट्रेच आता है, बहुत सारा। और बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमारे नेक के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं, बैक एक के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और ये यदि हमें नहीं चाहिए तो रोज हमें करना चाहिए नेक एक्सरसाइज। ये नेक एक्सरसाइज आपका जैसे ही एक क्लास खत्म हो जाता है, टीचर को आने को थोड़ा समय है, उस वक्त आप कर सकते हैं। सीधा बैठिए, बिल्कुल से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधा रखना है। देखो, योगा में और ब्रीदिंग में पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आपको सीधा बैठना है और आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहनी चाहिए, यानी आप अपने साथ रहते हैं। ओके, तो अभी आप देखिए, हम नेक मूवमेंट करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे। हम लोग जब नेक है, पहले हमारी जो चीन है वो यहाँ लगाएंगे, और जब हम नेक को ऊपर ले जाएंगे तब हम ब्रीथ इन करेंगे। समझ गए? तो ये देखिए, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out। क्या बच्चों, जब आप ब्रीथ इन कर रहे हो और होल्ड कर रहे हो तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी है? इसको ऑब्जर्व कीजिए। फील द स्ट्रेच, ब्रीथ आउट। लास्ट टाइम करेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब गर्दन को सीधी करिए। इसके बाद हम लेफ्ट में देखेंगे, ब्रीथ आउट करते हुए बीच में, ब्रीथ इन करते हुए राइट में। आप एक बार देख लीजिए, फिर हम साथ में करेंगे। ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, hold, breathe out, breathe in, hold, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। अब हमें नेक रोटेशन कहते हैं इसको, वो करना है ब्रीदिंग के साथ। पहले हमारी चीन यहाँ पे, उसके बाद ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसकी मूवमेंट ऐसी चाहिए कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी स्ट्रेच आए।
अब एंटी क्लॉकवाइज आपने जिस तरीके से किया है उसके अपोजिट करना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। कैसे लग रहा है आपको बच्चों? फ्रेश लग रहा है? कितना? बिल्कुल सिंपल लग रहा है ना ये एक्सरसाइज, बिल्कुल सिंपल। पहले हमने क्या किया? हैंड इन आउट ब्रीदिंग किया, राइट, ऐसा और ऐसा। उसके बाद हमने क्या किया? हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग किया, राइट, 3 वेरिएशन में। उसके बाद हमने एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग किया और उसके बाद में हमने नेक रोटेशन किया। अब मैं आपको ये स्लाइड दिखा देती हूँ और इसके बाद आपको ये बॉक्स ब्रीदिंग जो है ना टेक्निक, साइंटिफिकली प्रूवन, बच्चों के लिए बॉक्स ब्रीदिंग से कैसा इंटेलेक्ट, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, क्रिएटिविटी, उनकी ब्रेन पावर कैसे इंप्रूव होती है ये हम देखेंगे। आइए हम स्लाइड्स देखते हैं। पहले इस ब्रीदिंग इन आउट की, ये देखिए, ये हमने किया हैंड इन आउट ब्रीदिंग, इनहेल करके, होल्ड करके, एक्सहेल किया। ये हमने किया 3 वेरिएशन में हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग। आगे आपके ध्यान में, आप कर पाओगे, बहुत सिंपल है, एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग। ओके, नेक्स्ट, डीप ब्रीदिंग ब्रिंग्स डीप थिंकिंग, शैलो ब्रीदिंग ब्रिंग्स शैलो थिंकिंग। हम लोग शैलो ब्रीदिंग के आदी हो चुके हैं, हमें ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंस ही पता नहीं। हमें लगता है ब्रीदिंग चल रहा है, चलने दो। सब लोग योग आसना के ऊपर ध्यान देते हैं, हमें आज से, अभी से ध्यान देना है हमारे ब्रीदिंग के ऊपर। नेक्स्ट, ब्रीदिंग से स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है। नेक्स्ट, ये ब्रेन ब्रेक एक्टिविटी है। विजय वल्लभ स्कूल की सारी टीचर्स ये प्रेजेंटेशन देख रही है। ब्रेन ब्रेक आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि एकेडमिक्स में पढ़ाई का इतना स्ट्रेस बच्चों पे आता है, हम जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और आजकल की जो स्टडी है वो कभी कभी पेरेंट्स को पता भी नहीं होती है, तो पेरेंट्स भी ये स्टडी नहीं ले सकते। इसलिए ये ब्रेन ब्रेक की आवश्यकता टीचर्स और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड सभी को है। तो चलो लेट्स सी व्हाट इज दिस ब्रेन ब्रेक। आप सोच रहे होंगे योगा में ब्रेन ब्रेक कहाँ आ गया, बट योग से ब्रेन एक्टिवेट होता है, ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी देखिए, इसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग है ना, आज के बाद आप क्लास में भी रोज करोगे। अभी आपको सिट कंफर्टेबली ऑन चेयर और द फ्लोर। कुछ बच्चे नीचे बैठे हैं, कुछ चेयर पे बैठे हैं। बैक स्ट्रेट रखेंगे, लेग क्रॉस रखोगे जैसा आप देख रहे हैं, और हम अब बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे। ये बॉक्स ब्रीदिंग है ना, इनडायरेक्टली मैंने आपके पास से करके लिया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसके पीछे की थियरी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, ये एक्टिविटी शुरू होने के पहले मुझे तो खांसी आने लग गई। आपको क्या हो रहा है? किसी के चेहरे पे स्ट्रेच है, स्ट्रेन है, कोई हंस रहा है, एक सेल्फी खींच लीजिए या मिरर में देख लीजिए। खांसने से तो मेरे आंख में पानी आ गया, आपको भी कुछ कुछ हो रहा है। ये कुछ कुछ होने का हम लोग इमेज कैप्चर कर रहे हैं, और अब हम इस एक्टिविटी को करेंगे। उसके बाद से फिर हम आपकी इमेज को कैप्चर करेंगे और देखेंगे आपके एक्सप्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्टेप 1 क्या होती है पहले आप समझ के लीजिए। आपको आपके ब्रेथ का जो ट्रैक है ना, उसका अवेयरनेस आना है। यानी क्या, व्हाट इज अवेयरनेस? कि आप जैसा, आपको यदि भागना है तो आप क्या करते हैं, कैसे भागना है उसका पाथ देखते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, ब्रीदिंग का पाथ ट्रेस करना है। आप कहोगे क्यों? ब्रीदिंग तो नेचुरल है, होते ही रहता है,
ध्यान नहीं दिया तो भी अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। हमने तो कभी सीखा ही नहीं। हमको तो योगासन जरूर सिखाया है, मगर ब्रीदिंग ऐसा करना चाहिए किसी ने नहीं। चलो लेट्स डू। तो स्टेप 1 क्या होती है? स्टार्ट ट्रेसिंग एन इमेजिनरी बॉक्स। आपके सामने एक बॉक्स है, आप इमेजिन कीजिए जैसा आपको दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जब आप इनहेल करोगे ना, लेट अस एट द ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योर हैंड गोज अप। तो आप इनहेल करोगे ऐसे बॉक्स से ऊपर जाते हुए, ओके। उसके बाद क्या करना है? आपको 5 काउंट्स करना है इनहेलेशन के, ओके। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड भी दिखा देती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड भी दिखा देती हूँ बॉक्स की, फिर हम इसको करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देख लीजिए बच्चों, उसके बाद एक बार हमने 5 काउंट करके इनहेल किया, उसके बाद 5 काउंट में होल्ड करना है ब्रीथ को, यानी ना छोड़ना है ना लेना है। समझ में आ गया? और उसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद एक्सेल करते वक्त वापस काउंट करना है, और बच्चों उसके बाद वापस हमको होल्ड करना है। तो मैं अब आपको इनहलेशन और एक्सलेशन में होल्डिंग सिखा रही हूं, यानी ना तो आप ब्रेथ लेंगे ना तो छोड़ेंगे। तो इसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। क्या मतलब हो गया? लेट्स डू दिस प्रैक्टिस, ओके। हम लोग पहले इनहेल करेंगे, 5 काउंट्स करेंगे, एक्सेल नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे 5 काउंट्स, उसके बाद एक्सेल करोगे, होल्ड करोगे। आपको समझ में आ गया बॉक्स ब्रीदिंग? 1 2 3 4। तो पहला 1 जो है, हम हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं, आपको हाथ ले जाना है, सिर्फ समझने के लिए एक बार लेके जाना, उसके बाद सिर्फ ब्रीदिंग करना है, ओके। वी विल स्टार्ट बॉक्स ब्रीदिंग। ब्रीदिंग 1 2 3 4 5, होल्ड द ब्रीथ 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5। अभी विदाउट हैंड मूवमेंट आप सिर्फ इमेजिन करोगे और ब्रीथ इन होल्डिंग, ब्रीथ आउट और होल्ड करोगे। ऐसा समझिए बॉक्स है, आपको सिर्फ ब्रीथ इन करना है और ब्रीथ आउट करना है विथ होल्डिंग। मैं काउंट कर रही हूँ, देख भी रही हूँ, आप सिर्फ ब्रीथ इन करोगे, ओके। और ब्रेथ का अवेयरनेस, ब्रेथ का अवेयरनेस यानी आपका ब्रीथ अंदर जा रहा है, आपने उसे होल्ड किया है, आपने ब्रेथ को छोड़ा है यानी एक्सेल किया है, उसको होल्ड किया है। आपका पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी, आपका माइंड, आपका ब्रेथ आपके ब्रेथ के साथ, इसे ब्रेथ अवेयरनेस कहते हैं। हमारे दिमाग में और कुछ नहीं है, टीचर ने क्या कहा, हम कहा है, हम सेशन अटेंड कर रहे, कुछ नहीं। बी विथ योर ब्रेथ, आपकी सांस के साथ। लेडीज यदि साथ में है तो आप सांस यानी आपकी सांस के पास मत देखिए, आप अपने श्वास के पास देखिए। आ गई बात ध्यान में? हमारा ध्यान है हमारे ब्रेथ पे, हमारे सांस पे। ब्रेथ अंदर जा रही है, उसको रोक के रखा है, बाहर छोड़ा है, उसे भी रोका है। साइंटिफिकली इसको क्या कहते हैं ये हम बाद में देखेंगे। लेट्स डू बॉक्स ब्रीदिंग एक्टिविटी। इनहेल, होल्ड, exhale, hold, inhale 1 2 3 4 5, hold, exhale 1 2 3 4 5 6, hold, inhale, hold, exhale, hold। ये आप 5-6 बार कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाना है। अब जरा आपका पिक्चर देखने दो, कैसे लग रहा है? आपको नहीं लगता ये ब्रीदिंग करते वक्त आप सब कुछ भूल गए थे? क्योंकि आप अवेयरनेस के साथ ब्रेथ कर रहे थे, आपका पूरा ध्यान आपके ब्रेथ के ऊपर था कि हमारी ब्रेथ अंदर जा रही है
उसको हमने होल्ड करके रखा है, हमने उसको छोड़ दिया है, फिर से होल्ड किया है। इसको कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। इसका एक वीडियो यूट्यूब पे है, मैं आपके मैडम को बोलूंगी वो आपको बाद में जरूर दिखा दे। मगर ये ब्रीदिंग में माइंड डिस्टर्बेंस पूरा निकल जाता है, डिप्रेशन पूरा निकल जाता है। और कभी भी कर सकते हैं, हर क्लास के बाद आप एक बार कर सकते हो। टीचर्स को भी पढ़ा पढ़ा के कभी कभी डिप्रेशन आता है। कोरोना में तो इतना हुआ था कि पूछो मत। ऑनलाइन सिखाओ, बच्चे है नहीं है, दिख रहे नहीं दिख रहे, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, और टीचर, बच्चे बोलते हैं टीचर वही पढ़ा रही है। अरे कितना सारा प्रेशर। ये प्रेशर ब्रेथ से कंट्रोल होता है, हमारे ब्रीदिंग से कंट्रोल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चन देखा और लगा कि ये तो मुझे आ रहा है, और लिखना शुरू किया और आ ही नहीं रहा है, क्या करोगे? इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड एंड स्टार्ट राइटिंग। आपका ब्रेन, आपका माइंड और आप एक साथ में होगे और यू विल कम आउट ऑफ योर डिप्रेशन। आप जो भूल रहे हैं वो आपको याद आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बाद में हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं वो बंद हो जाते हैं। We stop thinking because we are concentrating on our breath. इसे ब्रेथ अवेयरनेस कहते हैं। बहुत ही साइंटिफिक वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, मगर ब्रेथ अवेयरनेस से सारी बीमारियां, वो डाइजेशन की हो, वो मेमोरी लॉस की हो, वो रेस्पिरेशन की हो, वो डिप्रेशन की हो, वो कम हो जाती है और आपके सेल्स जनरेट होते हैं। तो करोगे बच्चों मेरे साथ रोज, और बाद में टीचर के साथ, पेरेंट्स के साथ, और अपने आप। कुछ नहीं चाहिए आपको, नो जिम, नो इंस्ट्रूमेंट, आप और आपकी सांस। सांस तो नेचुरल एयर में अवेलेबल है, उसको आपको सिर्फ सिस्टमैटिकली लेना है और छोड़ना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी जब तक हमारी स्लाइड आती है ना, तब तक आप मुझे बताइए आपको कैसे लग रहा है। आपको खुश लग रहा है, नहीं लग रहा है? हम वापस इमेज पिक्चर कैप्चर करेंगे। तो बच्चे तो देखो कितने हंस रहे हैं, इसके तो देखिए हंसी कितनी खिल रही है। आप बच्चों के पास देखिए, हाउ डू यू फील आफ्टर दिस? क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया, एक बार समराइज करते हैं, फिर वी हैव टू मूव टू योर क्वेश्चंस आल्सो। क्योंकि आपको तो लग रहा था योगा एक्सरसाइज सीखने को मिलेगा, अलग अलग आसन दिखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, मगर मैम ने तो ब्रीदिंग की बात की है। तो नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों आप भी मेरे साथ देखिए, जो भी लिखा है ना वो बेनिफिट आपको ये ब्रीदिंग से होने वाला। reduces एंजाइटी, मैनेजिंग स्ट्रेस, इम्प्रूविंग फोकस। फोकस बहुत जरूरी होता है, आजकल तो नींद ही नहीं आती है ना, हम लोग इंटरनेट, कंप्यूटर, गेम्स, सो बेटर स्लीप आती है। फास्टर रिकवरी फ्रॉम वायरसेस, चलते फिरते नए नए वायरसेस आ रहे हैं, हैंड माउथ एनर्जी क्या, एलर्जी क्या, एनर्जी की बात की, एनर्जी तो ब्रेथ देता है और एलर्जी वायरस देता है। तो ये वायरसेस भी निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेथ में इतनी ताकत है कि हम हर वायरस से लड़ सकते हैं। डिक्रीजेस स्ट्रेस, increases calming down, relieves pain, stimulate the lymphatic system. Next slide. Wow, क्या क्या हो रहा है सिंपल ब्रीदिंग से। detoxifies the body, improves immunity, increases energy, lower your blood pressure, improves digestion, helps support, and correct posture is very important. आप ब्रीदिंग करते वक्त ऐसे ऐसे मत बैठिए, आपको सीधा बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो प्रायोरिटी आजकल क्या क्या है? संडे को तो लगता है पेरेंट्स के साथ जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, स्टडी टाइम, कैसे सब मैनेज करें? नेक्स्ट स्लाइड। माय डियर स्टूडेंट, it is not a time management, it is a mind management. On mind management improvises with systematic deep breathing. Next slide. It's your time. Start now. Question and answers. Yes. Yes, ma'am. We Good. all think yoga is just stretching or twisting our body into various shapes.
but you made us know that yoga is easier than it looks. How deep breathing can actually help your digestion system, keep your mind calm, and spread happiness in your life. Basically, deep breathing can allow us to experience our true essence. Thank you, ma'am, for making us know the value of deep breathing. Now, let's move to our interactive session. Ma'am, your explanation was indeed awesome. We will surely practice box breathing and breathing exercises shown by you. Now, out of anxiety, we would like to ask you some questions. Sure. So let's begin with the question answer session. Of course. Our student Harshita Jagtap would like to ask you a question. Over to you, Harshita. Thank you. My name is Harshita. I study in Standard 7. Ma'am, my question to you is, what is the best time to do breathing exercises in a day and how much time should be devoted for it? See, as a दिन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा समय क्या है? दिन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा समय क्या है और इसके लिए कितना समय देना चाहिए? ओवर टू यू मैम. बहुत ही अच्छा सवाल है। ब्रीदिंग कब करना चाहिए? ब्रीदिंग तो हम दिन भर करते हैं, मगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है, सबसे अच्छा समय सुबह का रहता है। अर्ली मॉर्निंग इज ऑलवेज बेटर बिकॉज वी आर फ्रेश, और फ्रेश एयर में करना चाहिए। और डीप ब्रीदिंग ये ऐसा टेक्निक है कि धीरे धीरे आपको अपना ब्रीदिंग इन एंड आउट ब्रीदिंग जो हम रेगुलर करते हैं इसको स्लो डाउन करना है, यानी आपको दिन भर ही डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। पहले तो देखो, आजकल तो मोबाइल पे लोग अलार्म लगा देते हैं कि 60 मिनट से पानी पीना है, राइट? तो आप क्लास खत्म होने के बाद एक बार डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी ब्रीदिंग हैबिट ही बदल जाएगी और आपका ब्रीदिंग स्लो डाउन हो जाएगा और आप दिन में हमेशा स्लो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करना शुरू करेंगे। क्योंकि हम इतना शैलो ब्रीदिंग करते हैं कि वो हमारे लंग तक पहुंचता है या नहीं, यही हम जानते हैं। इसलिए डीप ब्रीदिंग, जैसे आपने पूछा, सुबह आप एक बार ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो, ब्रीदिंग एक्टिविटीज कर लो। योग आसन के बाद ब्रीदिंग, प्राणायाम करने के पहले ब्रीदिंग किया जाता है। तो पहले लोग योगासन कर लेते हैं, जो भी आसन है, जो भी एक्सरसाइजेस आप कर रहे हैं, रनिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, कोई सूर्य नमस्कार कर रहे, कोई योगास कर रहे, उसके बाद प्राणायाम के पहले ब्रीदिंग टेक्निक्स किए जाते हैं जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद मेडिटेशन में आप डीप ब्रीदिंग करते हो। थैंक यू। बहुत ही अच्छा सवाल किया। Sure, ma'am. We will practice deep breathing in the class. In the assembly also, we will see that we'll ask students to do deep breathing. It will make them more fresh. Yes, ma'am. When we begin, maybe we will feel tired, but over time the techniques become easier and we will feel more natural, isn't it? So now our teacher Evelina would like to clarify her query. Over to you, Evelina. Hello, ma'am. I would like to ask you, what is the effect of yoga on mind, body, and health? योग का मन, शरीर और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? मीना जी, योग और अदर फिजिकल एक्सरसाइज में ये बहुत बड़ा फर्क।
आप देखोगे कभी आपने जिम में एक्सरसाइज करते हुए यदि किसी को ऑब्जर्व किया है, तो जैसे मैंने हेडफोन लगाए, वो लोग ट्रेडमिल पे हेडफोन लगाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। माइंड इज समवेयर, सांस इज समवेयर और एक्सरसाइज हो रहा है। इसको हमारे योग भाषा में फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जिससे आपका फिजिकल स्टैमिना बढ़ता है, फिजिकली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। यहाँ पे माइंड कहीं भी नहीं आता। योग में जैसे आपने अब मेरे इस सेशन में देखा होगा कि मैं कह रही थी आप ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, आप अपने ब्रेथ पे ध्यान दीजिए। वैसा ही जब मैंने आपको हैंड इन आउट ब्रीदिंग सिखाया तो मैंने कहा बी अवेयर। तो योग हम अवेयरनेस के साथ कहते हैं, और जब हम अवेयरनेस के साथ योग करते हैं ना, तो माइंड बॉडी सोल टुगेदर होता है, टुगेदर होता है। और फिर जब माइंड बॉडी सोल टुगेदर है तो आप 100% इन्वॉल्व होते हैं, और जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी सारी सिस्टम्स, फिजिकली नहीं तो अंदर की डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एंडोक्राइन और सिस्टम्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, और ब्रेथ सिंक्रोनाइजेशन, माइंड काम डाउन होता है। इसीलिए कहते हैं कि मन, शरीर और आत्मा ये सिर्फ योग से एक साथ आते हैं, बिकॉज इट इज योग वर्ड जो है संस्कृत शब्द युज से आया है, और युज यानी जोड़ना। जोड़ना किसको जोड़ना है? शरीर, मन और आत्मा को। तो योग का मीनिंग ही है कि शरीर, मन, आत्मा से किया जाने वाला व्यायाम। Yes, ma'am. It is necessary that the mind, soul, and body should go together, and we should keep in mind while performing the exercises. Now, our student Tanish Palesha would like to ask you a question. Over to you, Tanish. Thank you, ma'am. My name is Tanish Palesha, studying standard 7. Ma'am, my question to you is, how can concentration power of student can be increased through yoga? योग द्वारा विद्यार्थियों की एकाग्रता शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? Over to you, ma'am. एकाग्रता, तनिष, एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन में जब आपका मन, माइंड जिसे कहते हैं चित्त, योगा में कहा जाता है, ये माइंड जब विवरिंग होता है ना, जब ये माइंड कहीं पे फोकस नहीं होता है ना, तो हम लोगों का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। शेष पतंजलि ने योग के बारे में क्या कहा है तनिष, पता है? चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त, चित्त यानी मन, वृत्ति यानी बिहेवियर। चित्त और वृत्ति को कंट्रोल करने का काम योग करता है, यानी हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम योग करता है। योगा इज अ फोकस। योग करने से धीरे धीरे आपके ध्यान में आता है कि आपका कंसंट्रेशन टीचर क्या पढ़ा रही है इस पे बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड इधर उधर नहीं घूम रहा है। माइंड कहाँ जाता है? मम्मी ने घर पे क्या खाना बनाया है, टिफिन में क्या दिया है, वो दूसरा दोस्त क्या कर रहा है, ये सब भूल के पूरी एकाग्रता से आप उस टीचर के ऊपर कंसंट्रेट करते हो, उसको ग्रास्प करते हो और उसका रिजल्ट अच्छा आता है। सो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन से कंसंट्रेशन बढ़ता है, और योग अभ्यास ब्रीदिंग के साथ करने से माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है। आ गई ध्यान में बात? Yes, ma'am. Wonderfully explained by you, ma'am. This is very important that the students should concentrate on whatever they are doing, and the breathing exercises will surely help them. Now, our teacher Bhavika would like to ask you a question. Over to you, Bhavika. Hello, good morning. I am Bhavika. I would like to ask you a question. Tell us, how can yoga benefit our students? Ma'am, can you tell us how can yoga benefit our students? हमें बताए कि योग हमारे छात्रों को कैसे लाभ पहुंचा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट भाविका, तुम्हारे नाम का जो भाव है ना, वो भाव जब
योग में आ जाता है तो हर स्टूडेंट उस मोमेंट में रहना सीखता है, न पीछे जाता है न आगे जाता है, न भूतकाल का विचार करता है न भविष्य का। ही इज ऑलवेज इन प्रेजेंट बिकॉज योगा टीचेस यू अवेयरनेस। और जब भी अवेयरनेस आता है तो उसका लाभ सबसे ज्यादा सिर्फ बच्चों को क्यों, योग करने से सभी को फायदा होता है। हमें भाविका लगता है कि योग यंगस्टर्स के लिए नहीं है, योग बच्चों के लिए नहीं है, आप यदि 60 के ऊपर है तो आपने योग करना चाहिए। ये सब गलत है, क्योंकि अभी सारे एथलेट्स, सारे स्पोर्ट्समैन योग में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि माइंड यदि काम नहीं करेगा तो शक्ति काम नहीं करने वाली, राइट। तो योग आपको प्रेजेंट में रहना सिखाता है। And who is a winner in life? Who is in present? क्योंकि present moment is very very important. Again कोरोना ने बता दिया है, पता नहीं कल हम हैं या नहीं, तो क्या करना है, आज में जीना है, और आज में जीने को सिखाता है योग। मुझे भाविका, तुमने भगवत गीता का एक श्लोक याद करा दिया। Which one? योगस्तः कुरु कर्माणि संज्ञं त्वत्वा धनंजयः सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी आवाज आ रही है भाविका? आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है आपको आवाज। तो सुनो, योग में जाता है ना, वो सक्सेस और फेल्यूर को, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस को इक्वल देखता है। आप मिस्टर धोनी को देखते हो ना, मिस्टर धोनी इज अ कूल पर्सन। तो श्री कृष्ण का कहना है, जब हम जिंदगी में हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, सक्सेस और फेल्यूर को इक्वल दृष्टि से देखने को सीखते हैं तो हम जीना सीखते हैं, भावपूर्ण जीना। इसलिए योग का बहुत फायदा है, सिर्फ सेहत के लिए नहीं तो मानसिक, शारीरिक दोनों के लिए। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम, योग शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ाता है हमारी, ये बात तो बहुत सही है। नाउ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, विच आसन विल हेल्प अस टू मेक अ बॉडी फ्लेक्सिबल? कौन सा आसन हमारे शरीर को लचीला बनाने में हमारी मदद कर सकता है? ओवर टू यू मैम। सवाल ये तो बहुत कॉमन है, क्योंकि सभी को लगता है कि योग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। यू नो, हम शिल्पा शेट्टी, करीना, सभी को देखते हैं, अभी तापसी, और हमको लगता है कि ये लोग योग करते हैं इसलिए फ्लेक्सिबल। देखो, योग करने से हम फ्लेक्सिबल तो जरूर बनते हैं, मगर सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी और वेट कम करने के लिए योग नहीं है। योग ये सर्वांगीण विकास के 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी पे योग काम करता है। व्हाट इज दोस 5 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। ओह, आपका तो सवाल था फ्लेक्सिबिलिटी की आसना का, मैं बता देती हूँ। हम वृक्षासन करते हैं, हम त्रिकोणासन करते हैं, हम अर्धचक्रासन करते हैं, पूरा चक्रासन करते हैं। ये सब चीजें हमें फ्लेक्सिबल बनाती हैं, मगर योग करके, अच्छे पोस्चर करके, फोटो निकाल के सोशल मीडिया पे डालने के लिए योग नहीं है। तो योग 5 लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए है, जिसे सदगुरु जी इनर इंजीनियरिंग कहते हैं। इनर इंजीनियरिंग। Thank you, ma'am. You have indeed explained that that breathing exercises do help us. Very simple and very easy to become more flexible. जो हम लोग इंस्पायर होते हैं ना ये हीरोइंस को देखकर, तो that is not the reality. What the reality is, breathing exercises are more important. Thank you so much, ma'am. Madam, I'm sure your student will remember this. Yes, Simple yes. exercises and they will start practicing to get result. और मैं आपको एक एश्योरेंस देती हूँ कि आप उनका रिजल्ट अभी का
जो टर्म खत्म हुई है, और ब्रीदिंग टेक्निक्स करने के बाद का इवैल्यूएट करेंगे. आपके लिए भी एक रिसर्च टॉपिक रहेगा. Yes, sure, ma'am. We will see that after giving them the breathing exercises, what will be the result? We will surely tell you also. Okay, ma'am. Thank you. With this, we conclude our question answer session. I hand over the session to our principal, ma'am, for her views. Today, we had an outstanding personality, Dr. Sunanda Rathi, for the webinar on an interesting topic, yoga heals the soul. Madam, we really appreciate you for sparing your valuable time with us and enlightening our viewers on this topic. Our viewers were convinced how yoga plays a vital role in our life. What are the benefits of it and how breathing plays very important role in it. It is rightly said, yoga is the best and easy way to stay healthy. Yoga is the foundation towards a successful, calm life. So, I would like to tell all the viewers, those who were watching today, it's never too late to start with a new thing. Nothing is impossible for those who try. So, try out right from today itself. Thank you, ma'am, for your wonderful views. Now, I hand over the session to Evelina for the vote of thanks. Thank you, Farida. On behalf of our school and the entire fraternity of our school, I extend a really hearty vote of thanks to our guest, Madam Sunanda Rathi, who spared time from her busiest schedule to grace us this morning. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. A heartfelt thanks to our chairman, Shri Subhashji Parmar Sir, committee members, trust members, principals, and teachers for their guidance and encouragement. A special thanks to our technical team for their solid support. A big thank you to our viewers for joining us. I appreciate your patience and consistency during this time. Now some important instructions for our viewers. There will be no Sunday hour on 23rd and 30th of October for the Diwali celebrations at our home. We shall meet on 6th of November at sharp 11 AM. आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं. Wish you all a very happy, prosperous and safe Diwali. Thank you once again and stay tuned with us for many more upcoming webinars. Meet you soon. Have a nice day ahead. Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune, India. Thanks all our viewers for giving your overwhelming response. Thanks to our today's eminent guest. A special thanks to our chairman, Shri Subhashji Parmar. A big thanks to our team members. Mrs. Snehal Khataukar, Principal. Mr. Kalpesh Darji, Team Leader. Mrs. Farida Sayyad, Teacher. Mrs. Avelina John, Teacher. Mrs. Itisha Shah, Teacher. Miss Bhavika Rathod, Teacher. Mrs. Aparna Dhaigude, Team Member. Miss Daksha Dhalawat, Team Member. Once again, thank you all. Thank you all the viewers for watching this webinar. We look forward seeing you next Sunday for yet another interesting webinar. Till then, stay tuned. Thank you.